किया? कौन सी आयतें थी? इट इज अबाउट बैक बाइटिंग, एजम्पशन एंड बदगुमानी के बारे में। तो अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। A warm welcome to one and all the esteemed school leaders. We are really honored that you are here on time. Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah accept this gathering and make it a source of khair for all of us. अल्लाह ताला हमारे जुड़ने को कबूल करे और इसे हमारे निजात का जरिया बनाए। हमारे दिलों को और जहन को अल्लाह ताला हिदायत के लिए खोल दे। May Allah open our hearts to knowledge and guidance, beneficial knowledge and wisdom, and may He be our guide at every step. Having said this, I would also like to add on, may Allah safeguard our hearts from any sort of nifaq or shar that might take us away from the path of Allah. May Allah bless us with all the khair. Every member who is in this meeting, everyone who is associated with you, your school, all of your stakeholders, all of our students, and the entire Ummah. May it be blessed with all the khair that is in store for us, and may Allah safeguard our hearts from any sort of shar or nifaq. Ameen summa ameen. Having said this, I would like to ask you people, आप लोग, how are you feeling right now? आप लोगों को जैसे सुबह से शायद स्कूल था, you have been handling responsibilities and taking care of maybe FAs are going on in your school or you have completed. So again, you made a mind and intention to be in this leadership session. Alhamdulillah, may Allah grant you for this. Give barakah in your time. So how are you feeling? How was your day today? One word to explain your feeling and how was your day today. ओके, इट कैन बी, आप एक अल्फाज लिख सकते, आप एक स्माइली भेज सकते चैट में. तो या, आई गॉट अ हार्ट, माशाल्लाह. दैट मीन्स द डे वाज गुड. There are 25 participants here. Let me see some more responses. Okay, you had a PTM. That's good, mashallah. That's indeed tiring also, and lots to do on PTM, mashallah. Many hearts and thumbs up. How are you feeling, Naila ma'am? I've seen a thumbs up from Furqan sir also. Alhamdulillah. That's nice. Nice to see. So hopefully you're sitting in a place that is devoid of any sort of distraction and you're making a note of the points. Okay. You must be those who are attending the leadership sessions. By now you understood that our leadership sessions are not only lectures or something like that. We also give you something to think, to implement some formats actually, to reflect and ensure that the practices are implemented in your school. So I want you all to be quite attentive. This is a very interesting session coming up that is about decision making. So are we ready? Good to go? Shall we have a quick check on the intention? Let's consciously make an intention like, may Allah bless us with khair for this 1 hour and put lots of barakah in it, and may this be quite productive, and we have assembled here to please Allah subhanahu wa ta'ala. So that's something like a conscious intention we are making. Yes, are you all with me? Are you all with member team? Yes, alhamdulillah. कुछ तो लिखिए चैट बॉक्स में, yes, no, all right, अभी. Yeah, jazakallah khair. Only from Naila ma'am I got. I am unable to see the responses in the chat box. Yeah, Nabla ma'am is also there. Sultana ma'am, Shafiq sir. Nice, nice, mashallah. ठीक है. Thank you so much. Well, so in your previous sessions, we have discussed about vision, if you remember. Okay, I have insisted you all to make a vision statement if you haven't made a vision statement for your school. Okay, so vision is something. विजन क्या है? आपके स्कूल को आप कहाँ देखना चाह रहे हो आने वाले 10 साल में, राइट? Where do you wish to see your school as a whole? Like a school has students, teachers, parents, everyone associated with. So as a complete school with all the stakeholders, where do you wish to see your school in a period of 10 years actually comes under vision.
time is important, and I told you to display the vision statement in your school, in your office, so that it is communicated on a regular basis. And similarly, mission is a smaller version of vision, and the underlying principles, like smaller version in the sense for a less period of time, okay, and the underlying principles, the values that are associated in accomplishing the vision fall under mission, right? तो आपको मिशन स्टेटमेंट भी होना है. आप लोगों को ये भी याद होगा, मिशन और विजन के बेसिस पे हमने गोल्स बनाए थे. 4 कैटेगरीज में गोल्स बनाए थे, इफ यू रिमेम्बर. 4 डोमेन्स, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किए थे. या कौन से 4 डोमेन्स है वो? That is also called as scorecard, actually balanced scorecard. So what is that? Financial goals, internal processes goals, academic goals and learning and development. ये 4 गोल्स की बात हुई थी और आपको मौका दिया था कि हर वो डोमेन में आपको जो है गोल्स बनाना है. How many of you remember and how many of you have already made this? You worked on the goals for this year. I would like to see a raise of hand. अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, साल के स्टार्टिंग में ही है हम लोग. तो विजन पे वर्क करिए, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट और उसके साथ साथ गोल्स. जी, नॉट अ सिंगल हैंड that is raised. You haven't worked on these things? Okay. 4 goals. Financial goals for the entire year, financial goals, internal processes. 4 quadrants बना लीजिए आप लोग. You know what's a quadrant? मैथमेटिक्स में ऐसे बनाते ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसे 4 quadrants बनाइए. फाइनेंशियल गोल्स, इंटरनल प्रोसेसेस गोल्स, एकेडमिक गोल्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट गोल्स. लर्निंग एंड डेवलपमेंट मींस हर स्टेक होल्डर आपके, मतलब आपके इदारे में रहने के बाद हर कोई कुछ सीख के निकले. दे हैव टू लर्न. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन. हाउ डू यू डिफाइन स्कूल? हाउ डू यू डिफाइन स्कूल? School is a place. Complete the sentence in the chat box. How do you define a school? Quickly. How do you define a school? Can I see the responses in the chat box? School is a place where school leaders, please, your participation is of utmost importance. And there's no right answer, there's no wrong answer in this class. Okay? Quickly. School is a place where, okay, students को discipline किया जाता है. Okay, school is a place that enhances your personality. Interesting answer, mashallah. Okay, ये तो SWOT एनालिसिस हो गया इफ्तिखार सर. इससे पहले वाले गोल्स मैं बता रही थी, आप लोग लिख लीजिए. फाइनेंशियल गोल्स, इंटरनल प्रोसेसेस. Ma'am, your voice is breaking. We cannot hear you. Is it for everyone? It's fine for me. Okay, so there might be some problem. Financial goals, internal processes, academics, learning and development. ये 4 गोल्स है. अभी वापस सवाल पे आते हैं. Very good. School is a place where we live how to live a meaningful life. Jazakallah Sultana ma'am. I'll come back to the goals again. Very good. जो लोग समझ रहे हैं स्कूल वो ऐसी जगह है जहां हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, बच्चों को अच्छे इंसान बनाना सिखाते हैं, बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं. अगर ये हम समझ रहे हैं तो हमारा जवाब मुकम्मल नहीं है. राइट? सो school is a place not only for the students to learn, it is a place for teachers to learn, for principals to learn, for the stakeholders to learn. Every stakeholder in your school has to learn. Right? It's not only students, it's not only students. हम जब होलिस्टिक की बात करते हैं, जब हम आपका इदारा जो है सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला है, सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और आप उसके लीडर हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हो सकता. बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर्स भी सीखते हैं. राइट? हर दिन हमारे लिए सीखने के लिए है. हर दिन, हर लम्हा,
लीडर्स, टीचर्स को और पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को संभालते हुए लीडर्स भी सीखते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और दूसरे एडमिन के डिपार्टमेंट को देखते हुए डायरेक्टर्स भी सीखते हैं। यस, am I making sense? So from now on, if someone asks you what is a school, you can say school is a place where जहाँ पे I was appreciating the responses, जहाँ भी we आया है और हम आया है, that is right response actually, where everyone is learning. Everyone is learning. So let's think in this direction from now on. So our vision for 10 years should be for everyone. Being in your school, where will a teacher look at herself in a period of 10 years? How will the parents think in a period of 10 years? How are you transforming the community because of your school? Can we have such vision? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? Now, yes. Jazakallah Rafin, coming back to this, I had a quick recap of vision, mission and goals. ये 4 areas में आप लोग goals बना लिए. अब एक बार आपका विजन क्लियर है, तो अब आपको कुछ ऐसे निजाम सेट करने होंगे. You have to establish some systems. I request everyone to be quite attentive because it is, very core topic, okay, and it has many things coming up. It's always advisable to make a note of it in any form, like आप रनिंग नोट्स बनाते हैं या कुछ ड्रॉ करके आपको याद रहता है या पॉइंट वाइज लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, जैसे भी करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है। तो जैसे विजन, मिशन और गोल्स तक हम आ गए, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये है एज लीडर्स, एज स्कूल लीडर्स, कि हम उस जिम्मेदारियों को, उस विजन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करके उसको रियलिटी में तब्दील करने के लिए यू हैव टू एंश्योर दैट विजन इज लाइक ऑन लिव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. रोजमर्रा के क्लासेस में, आपके इंटरेक्शन में, आपके किताबों में, पढ़ाने के तरीकों में, हर जगह जो है विजन जो है दिखना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए. आप चाहेंगे ना ये हो, वरना वो सिर्फ जो है बुलेटिन बोर्ड्स पे डिस्प्लेड रह जाएगा, क्लास में कुछ और ही चलेगा, प्रिंसिपल कुछ और ही सोचेंगे, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट ऑफ विजन की भी जो बात हुई थी, अब ये ट्रांसलेटिंग द विजन इनटू रियलिटी, ये करने के लिए आपको जो है अकाउंटेबल स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, जिम्मेदारियां देनी होगी. यू हैव टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, यू हैव टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, right? You have to look at the different structures, different mechanisms in your school, different processes in your school, ठीक है। तो या लेसन प्लान इज वन ऑफ दैट. वैसे ही आप अगर आप एक स्कूल लीडर हो, तो आप मुख्तलिफ हर जगह पे हो. आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप एकेडमिक्स में हो, आप पेरेंट्स के काउंसलिंग में हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, आप मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में हो. ये सारे चीजें आपके सामने है. अब आपको एक अकाउंटेबल स्ट्रक्चर बनाना है. आपको ऐसा देखना है कि हर वो काम अपने टाइम पे जरा अच्छे से हो रहा, और हर वो काम सिस्टमैटिक हो रहा, और वो काम सिस्टमैटिक होने से आपका विजन फुलफिल हो रहा. टीचर अच्छा पढ़ाने से आपका विजन फुलफिल हो रहा, पेरेंट्स इन्वॉल्व होने से आपका विजन फुलफिल हो रहा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए बच्चों के अंदर स्किल्स आ रहे जिससे आपका विजन फुलफिल हो रहा. हर चीज जो स्कूल में होता है उसको निजाम होना जरूरी है, और वो निजाम बनाने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. यस और नो? To see that everything goes on smoothly, you have to decide. You can share the presentation, Rafin. You have to decide on something, okay? While doing so, ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाए, ये सारी चीजें मुकम्मल अकाउंटेबल स्ट्रक्चर्स मिल जाए आपको, और ट्रैक आप कर रहे हो, आपके पास चेक लिस्ट बने हुए हैं, और हर वो चीज अपने टाइम पे सुकून से कैरी ऑन हो रहा है, उसके लिए आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. डिसीजन मेकिंग इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एवरी लीडर. यहाँ पे जितने लोग 30-35 लोग बैठे हैं, मैं यकीनन जानती हूँ आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, लाइक दे आर मेनी लीडर्स हु आर क्वाइट कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, okay, they are good listeners, they are good academicians, okay, they are good administrators, but somewhere around something that comes into mind is I cannot take up decisions properly. I'm not a quick decision maker. अगर मैनेजमेंट में 4 लोग भी होंगे तो वो चारों में से कोई एक बंदा ऐसा होता है बोर्ड में कि वो उनका डिसीजन बहुत ही सही होता है, और he himself is a quick, he himself or herself will be a quick decision maker,
because there is a lot of processing happening in brain. Decision making actually is a process. ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोसेस है और इट लाइक आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा, आपको वो सोचने की सलाहियत बिल्ड करनी पड़ेगी। थोड़ा हम थोड़ा मतलब ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। सो दिस इज व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द कोलैबोरेटिव लीडरशिप फ्रेमवर्क। हम जब भी बात करते हैं, अभी मेरा जो सवाल था, स्कूल सिर्फ लीडर, स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के सीखने की जगह नहीं है, हर किसी के लिए सीखने की जगह है। हर वो स्टेक होल्डर यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी उठाता है। यू कैन चेंज द स्लाइड टू CLF। ओके, एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, हर किसी को एक रोल है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। ये वाला जो फ्रेमवर्क आपके सामने है, इसको जहन में बिठा लीजिए, हर किसी की एक जिम्मेदारी है। इट इज लाइक अ केयरफुली इंटरवोवन वेब है ये। किसी एक की भी जिम्मेदारी जस्टिफाई नहीं होगी तो स्कूल का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? तो आप लोग यहाँ जितने लीडर्स बैठे हैं, द लीडर्स हु आर हियर, इफ यू आर अ प्रिंसिपल, then your role is to manage, mentor and motivate. Okay, you have to manage the processes, mentor whoever requires, mentor the teachers, mentor the students, mentor the parents, your admin department. Okay, and then inspire everyone, that is motivate, inspire everyone to go an extra mile to do their responsibilities in a systematic way. So that is your role if you are principal. If you are principal and director, then it is like vision, आपको जो विजन है आपके स्कूल के लिए, ठीक है, और उसके बाद आप विजन के हिसाब से नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग फॉल्स इनटू प्लेस। ठीक है, इज दैट क्लियर टिल नाउ? या वी कैन चेंज। सो लेट्स सी व्हाई, क्यों करना है, क्यों डिसाइड करना है, these आर द रोल्स। ओके, लेट्स लुक एट व्हाई ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों करना है भाई? ताकि हर चीज जो है फंक्शन हो इंडिपेंडेंटली। और एक चीज आपको ये करना है, एवरीवन सिटिंग हियर एज लीडर्स, रिमेंबर, मेक योर सिस्टम, ऑटोमेट योर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ऐसे निजाम बनाओ कि वो किसी इंसान के मोहताज ना रहे। ठीक है, अगर आप भी अवेलेबल ना हो या किसी इंसान को जिसको आप डेलीगेट करें उनके एब्सेंस में भी काम चलता रहे। So that reminds me to say you that be like, you know, a person who creates a system that is process driven, not person driven. इसलिए कभी ऐसा होता है कोई एक नहीं आने से, मैनेजर नहीं आने से सब उथल पुथल हो गया, कुछ भी नहीं, उस दिन का दिन जैसे कि बेकार गुजर के निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका निजाम इतना प्लेस में हो कि इट हैपेंस इफ द पर्सन इज नॉट देयर, बट स्टिल यू नो दैट what has to go on throughout the day. You have to actually establish such systems that are process driven, not person driven. So this helps you, decision making से ये काम होता है। ओके, और आप चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? इंडिपेंडेंटली ये रिव्यूज, चेकलिस्ट, डैशबोर्ड्स, ये सब बनाने में जो है आपको मदद मिलेगा। ओके, somehow I am unable to see the screen clearly, Rafin. It's like a big thing popping up, big screen popping up. Okay, now yeah, dashboard, setting up of reviews, delegating responsibilities, ये सारी चीजें। Is that clear everyone? अब आपके मैंने जो गोल्स बताए थे, I have shown you the goals, right? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, okay. I have shown you the goals, right? Now, up decision making में you should have proper review system, review processes and accountable structures, I told you. ठीक है? Now, you have to do some sort of auditing. आपने goals बना दिए, आपको अब audit करना जरूरी है। What are the 3 audits? You can change the slide, Rafin. You have to do some audit. Uh, audit is a checklist. Audit is a checklist. Okay, तो यहाँ पे
you can make a note of it. बैलेंस स्कोर कार्ड की ऑडिट है, हेल्थ ऑडिट है और CLF की ऑडिट है. ओके, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड. अभी आपने जो गोल्स बनाए हैं ना, फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है, इंटरनल प्रोसेसेस, एकेडमिक्स और लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये 4 एरियाज में आपको गोल्स बनाना है पूरे साल के. अब आप रिव्यू में इसको इंक्लूड करना कि वो गोल किस हद तक जो है, किस हद तक फुलफिल हुआ, क्योंकि वो गोल को एस्टैब्लिश करने के लिए आपने इनिशिएटिव्स भी लिए. इफ यू रिमेंबर, to establish or to accomplish that goal, you have taken the initiatives. To check whether that initiative is being implemented or not, that review has to be taken. So that is the audit. That is the audit. Is that fine, everyone? आपको बैलेंस स्कोर कार्ड की ऑडिट करनी है. हेल्थ ऑडिट इन द सेंस, हेल्थ ऑडिट बोले तो आपको क्या आ रहा है? व्हाट इज कमिंग अप टू योर माइंड? लेट मी नो. When I say health audit, what is popping up in your mind? Is it the physical health I'm talking about, or it is a mixture of all the things like physical health, mental health, emotional health of all the stakeholders, performance के सारी चीजें हेल्थ ऑडिट में ये सारी चीजें आती. ओके, कैसे आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे चीजों को प्रॉपरली, मतलब हर चीज अपने हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई डिविएशन है क्या, वो चीज को बोलते हैं हम लोग हेल्थ ऑडिट. दे हेल्प इन एक्चुअली कहाँ पे फ्लॉ है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, कहाँ पे जो है जरूरत है हमको इंटरवेंशन की, वो चीज को नोट करना है. राइट? इज दैट फाइन एवरीवन? And the third audit is CLF audit, that is collaborative leadership framework. Collaborative leadership framework अभी जो आपको बताए हैं, हर किसी के रोल्स हैं. ओके, हर किसी के रोल्स हैं, तो हर रोल में अब आपको कैसा मालूम है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है आपके स्कूल में. ये एक ऑडिट हुआ फॉर पेरेंट्स, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? टेल मी. फॉर CLF audit and involvement, tell me one thing, do you believe that पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है स्कूल में, मतलब उसके बगैर नहीं होता, और उनको भी हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनके निजाम को, घर के निजाम पे वर्क करना है. डू यू बिलीव इन दिस? Tehreem, help me read the chat box if you can give the responses. Are they responding in the chat box? They are just saying yes, ma'am. Yeah, alhamdulillah. So the involvement of parents is there. तो अब वो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को आप रिव्यू करने के लिए क्या करेंगे? हाउ विल यू नो दैट दे आर इन्वॉल्व? किस हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट है? इसको देखने के लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर होना पड़ेगा. वो स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा. होप यू आर गेटिंग द कनेक्शन बिटवीन दिस. हर किसी का, हर एक स्टेक होल्डर को हम जो है रीच हो पा रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है अपने विजन के लिए. तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जहां हम भी स्टेक होल्डर्स को रीच आउट कर सके और क्रॉस चेक कर सके कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है. एट द सेम टाइम टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी गेट देयर, इट इन्वॉल्व्स योर डिसीजन मेकिंग. इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको बात समझ में आई? और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है एज लीडर्स, एज स्कूल लीडर्स, ये पीरियोडिक ऑडिट्स होते रहना चाहिए, ये चेकिंग प्रोसीजर्स रेगुलरली होते रहना चाहिए. हर 2 महीने में, हर 3 महीने में. यू ऑब्जर्व टीचर्स, एक्चुअली यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग टीचर्स, यू टेक डेमो लेसन्स. ये तो टीचर्स का ऑब्जर्वेशन हो गया. व्हाट अबाउट फाइनेंसेस? फाइनेंस को ऑब्जर्व करने के लिए या फाइनेंशियल ऑडिट्स कब कब होते हैं आपके पास? ठीक है, कौन चेक कर रहा है? सिमिलरली मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को कौन देख रहा है? फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को क्या होना चाहिए, किस तरीके का एक्शन हमको लेना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के लिए हमारे स्टूडेंट्स कितने पानी में है, उनके रीडिंग एबिलिटीज क्या है, आपकी एकेडमिक लीडरशिप क्या है, एकेडमिक लीडरशिप को एनहांस करने के लिए मुझे कैसा डिसीजन लेना होगा. ठीक है, और ये सारी चीजें संभालते हुए डूइंग सो यू विल ऑल्सो कम अप विथ कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स का नेक्स्ट वीक है सेशन. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दो लोगों में ना इत्तेफाकी होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, सडनली टीचर बीच में से
सडनली 2 महीने के बाद टीचर जाने का एप्लीकेशन देते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट उनका 1 साल का है, लेकिन वो सेकेंड मंथ में ही आके बोलेंगे कि नहीं सडनली कुछ हो गया, हमको जाना है। सैलरीज में कंपैरिजन करना शुरू कर देते। ये सारे इंटरनल है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, किसके हक में डिसीजन देंगे, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आती है डिसीजन मेकिंग में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक अच्छी बात आपको ये बताऊं कि हम एज लीडर्स, और हम हमारे इस्लामिक स्कूल्स हैं, सब इदारे इस्लामिक स्कूल्स हैं, हम बोलते हैं कि हम जो है कुरान और सीरा से हमारे जो है हमारे लाइफ को हम उसी राह पे सेट करें कि अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। So even before diving into what psychology says, what some famous philosopher says, or what a scholar says, let us build a what you can say, हम internally हम ये डिसाइड करेंगे आज से, अभी से या आप लोग करते हो, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिमिलर सिचुएशंस में हमारे नबी का तरीका क्या था, कुरान क्या बताता है, डिसीजन मेकिंग में एक लीडर को कैसे होने चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों को हम अगर पहल कर हमारे नियत का हिस्सा बना लेंगे, तो इंशाल्लाह 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 हर डिसीजन में खैर ही खैर होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर नियत, है ना? डू यू एग्री विथ मी? सो at this point of time, before diving deep into what are the traps and how something should go on, let me tell you, let's make an intention. Like I will try to, you also have to be a researcher on the go. कल से action research का class start हो रहा है, it's open for you also, leaders भी action researchers हो जाए, teachers भी हो जाए। इससे होगा ये कि हमारा जहन ऐसा बनेगा, रिव्यू करने का जहन बनेगा, डेटा कलेक्ट करने का जहन बनेगा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, डिसाइड इस तरीके से करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए, प्रॉब्लम एस्केलेशन की तरफ ना जाए। हम कहीं ना कहीं वी बिलीव लाइक हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया, टीचर के पास आ गया, टीचर एस्केलेट्स टू द इंचार्ज, इंचार्ज एस्केलेट्स टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कहाँ एस्केलेट करेंगे? अगर अच्छे डायरेक्टर हो तो वो अपने लेवल पे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डिसाइड करके सबके हक में बेहतर फैसला सुनाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं तो वो ब्लेम गेम का रास्ता अपनाएंगे, फिर वो उल्टा जाएगा कि डायरेक्टर बोलेंगे प्रिंसिपल ने नहीं देखा, प्रिंसिपल बोलेंगे टीचर्स नहीं करते, टीचर्स बोलेंगे पेरेंट्स नहीं देखते, पेरेंट्स बोलेंगे स्कूल में क्या हो रहा। तो ये लूप कभी भी स्पाइरल रूप, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, यही उसमें हम जकड़ के रह जाएंगे जब तक के हमको रिजॉल्व नहीं करेंगे। कुछ भी रिजॉल्व करने के लिए क्विक और स्मार्ट डिसीजन मेकर्स होने के साथ साथ नबी के तरीके समझे, और हम सोचे अगर कि हम जो है उसको थर्ड व्यू, थर्ड एंगल लेके सोचे कि ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इस सीन से बाहर आके सोचता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ फिर कुरान में क्या है लीडरशिप के बारे में। एम आई मेकिंग सेंस? फिर इश्तिखारा तो है अपने पास, इश्तिखारा से हम डिसीजन मेकिंग को जो है आगे बढ़ा सकते। शुरा है, कंसल्ट करना है, अपने ही ओपिनियन को लेके आगे नहीं बढ़ना है, 4 लोगों से मशवरा करना है, फिर वो सारे पहलू देखकर सबके हक में, जिससे विजन इफेक्ट ना हो, विजन डिविएट ना हो, वैसा फैसला एक एक लीडर को लेना चाहिए। और उनके फैसले से कहीं भी पर्सनल हो जा रही वो बात, और उनके पर्सनल ईगो पे आ जा रही बात, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, जहां पे बच्चों का लॉस हो रहा, टीचर्स का लॉस हो रहा, इदारे का लॉस हो रहा, लेकिन मैंने कह दिया है ये तो बस हो जानी चाहिए, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर लीडर ऐसा सोचेंगे तो फिर देन इट इज नॉट अ सक्सेसफुल सिस्टम। होप आई एम मेकिंग सेंस? जो मैं बोल रही हूँ वो जहन में जा रही है बात? एम आई मेकिंग सेंस? बिल्कुल, मैं बीच में सेशन के बीच में आपको ये बात बोल रही हूँ कि इंशाल्लाह 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 हमारा जो तरीका है, कुरान का हुक्म और नबी का तरीका, इसको और मजीद रिसर्च करके जानेंगे। सेकंड, हम इश्तिखारा और शुरा से जो है अपने मसलों को हल करना देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम समझते हैं और क्या करना चाहिए हमारे स्कूल के हक में, स्कूल के निजाम के हक में। इज दैट राइट? और ये भी मान के चलना है कि डिसीजन मेकिंग से रिस्क भी हो सकता। कैन वी चेंज द स्लाइड रफीन नाउ, और एल्स यू प्लीज गिव द राइट्स टू तहरीम एंड शेयर इट। एनी डाउट स्टिल नाउ? एनी टेक अवे स्टिल नाउ? कोई बात आपको अच्छी लगी हो और आप बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे उसको अमल करना? Ma'am, is the screen visible for you?
या ये बहुत अच्छी बात है कि सही टाइम पे या अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह हिना मैम। आई वांट अदर्स, अब तक की जो बात की थी, अब तक की जो बात हुई है, उसमें से आप क्या अमल करोगे? क्या अमल करोगे? मशवरा एक देखी मैं, और कोई रिस्पॉन्सेस? प्यारे नबी के तरीके को हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यस, इश्तिखारा करेंगे। राइट, वेरी गुड। एंड ईगो को सबसे पहले, मैं अहम था, ये मेरा वहम था, ये जो है ना, सो whole life we feel that we are important, there is no I, there is no me, it is we। ठीक है, हमको ये बहुत लास्ट में एक्सपेशली लीडर्स को कहीं ना कहीं ये चीज को ज्यादा अमल करना पड़ता है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कोई अच्छे काम के होने में, या कोई खैर स्कूल में इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो गया, प्रोग्राम अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं हम समझते हैं हमारे वजह से सारा खैर अल्लाह के तरफ से है। कुछ भी सही नहीं हुआ तो वो हमारे वीकनेस के वजह से, हमारे खामियों के और इम्परफेक्शंस के वजह से कोई गलती होती है। खैर पूरा अल्लाह के तरफ से होता है। राइट। और मैं लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि एक बहुत बड़े किंग थे, जो जिन्होंने किसी को अपॉइंट करके रखा था, और कि जब भी कोई तारीफ हो कि आपने, आप ये है, ऐसी तारीफ हो, तो इंस्टेंटली वो उनका जो असिस्टेंट है उसको ये मैसेज देना था कि एवरीथिंग इज गोइंग टू पेरिश, सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो वो उन्होंने वो रिमाइंड करने के लिए किसी को अपॉइंट कर लिया था, वो जो एक स्कॉलरली किंग थे। ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम भी कभी ना समझे कि कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो जा रहा, इदारा अगर कामयाब हो रहा तो बेशक उसमें अल्लाह ताला खैर डाल दिए नियतों के उससे, आप सभी के नियतों के उससे वो काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल लीडर्स को चाहिए कि जब भी आप विजिट पे जाए और कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व की है, तो वक्त पे वक्त देना जरूरी है। आपने ऑब्जर्व कर लिया, सपोज एक टीचर आप टीच कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि इस तरीके से टीचिंग नहीं होनी चाहिए, और आप चले गए, फिर मशगूल हो गए अपने अपने कामों में, तो वो तो वहीं पे खुला छोड़ दिया ना आपने, आपने क्लोज नहीं किया वो। ओके, आपने लूप को ऑब्जर्वेशन तक खुला छोड़ दिया। तो आप क्या करेंगे? आप फिर पर्सनली वो टीचर को बुलाएंगे, बात करेंगे, अगर से उनको इंस्पायर करना है इंस्पायर करेंगे, ताकीद करना है ताकीद करेंगे, और फिर कुछ है तो बहरहाल उनको समझाएंगे कि ये तरीका नहीं हुआ, आप ऐसे पढ़ाएंगे, हमारे विजन को असर कर रहा है वो। ठीक है, हर चीज को विजन से जोड़ के देखिए। सिमिलरली पेरेंट्स का बिहेवियर, सिमिलरली हर वो स्टेक होल्डर का ऑब्जर्वेशन, आप करेक्ट टाइम पे आपने देख लिया कि निजाम, स्कूल में जब एंटर होते हैं आप, और यहाँ पे आप पॉइंट लिखिए, आप एंटर कब होते हैं स्कूल? एज डायरेक्टर्स, एज प्रिंसिपल्स, क्या आप बच्चों से पहले जाते हैं? ये डिसीजन भी आपको लेना होगा, आपको जाना होगा, बच्चों से पहले आपको जाना होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफाई का क्या निजाम है स्कूल में। आयास काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अच्छी खुशबू आ रही है फिनाइल की वगैरह, या नहीं आ रही है, या फिर बच्चों के साथ ही आयाज आके काम कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा आपको। फिर मैं देखती हूँ कि थोड़े पेरेंट्स बैठे हैं, फीस पे करने के लिए आ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, असेंबली को जाना है, सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप भी जब भी आए हैं, आपके पीछे पीछे 2-3 आगे प्रिंसिपल भी आ गए कुछ शिकायत करने के लिए, तो ये निजाम तो सही नहीं हुआ ना। तो इसके लिए आपको शुरू में स्टार्टिंग में आने का डिसीजन लेना होगा। ठीक है, मैं कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ कि आप देख सके कि क्या कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ये प्रोसेसेस। इंशाल्लाह तो आप कब आएंगे स्कूल? तो आपने पकड़ लिया कोई गलती हो रही है, कोई सही नहीं हो रहा है, तो आपने जब ही वक्त दिया, आप जब ही बोले कि ऐसा करना है, आपने फिर बुला के बोला कि पेरेंट्स का एक स्पेशल टाइम रखिए, प्रिंसिपल मैडम आप ये 11 to 1 टाइम पेरेंट्स के लिए रखिए, उससे हटके कोई ना आए, और टीचर से लिस्ट मंगवाइए कि कौन से बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, उनका टाइम अलग रखिए। ये आपने डिसाइड किया है अभी। ठीक है, तो ऑन द वे, ऑन द गो, आपको जब भी टाइम देना है तब देना जरूरी है, बाद में जितना भी टाइम दे लो वो बात नहीं समझ में आती। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? आर यू गोइंग टू मेक अ नोट दैट यू आर गोइंग टू रीच स्कूल अर्ली, इवन द डायरेक्टर्स? कभी जाके आप असेंबली में ठहर जाएं, कभी वॉशरूम एरिया के पास ठहर जाएं।
ठीक है। और आप देखें कि वाकई में हम जो दावे कर रहे हैं स्कूल के बारे में हमारे पेरेंट्स के सामने, क्या वो मेंटेनेंस हो रहा है उस तरीके से? एकेडमिक्स के साथ साथ ये सारी जिम्मेदारियां भी है एक ट्रू लीडर को। अब आती है बात, फिर आप डेलीगेट किसको करेंगे, आप किसको ये काम देंगे? मेंटेनेंस के इंचार्ज कौन होंगे? ठीक है, एकेडमिक्स के इंचार्ज कौन होंगे? हम लोगों ने तो ट्रेलिस के तरफ से आपको मेंटर्स रखने की बात की एकेडमिक्स के लिए, तो वो भी हमने अभी कायम किया है या नहीं किया है? ये सारे चीजों को देख के अच्छे से डिसाइड करके फिर आपने रिव्यू मीटिंग भी लेनी है इंटरनली, और चेक करना है कि सारी चीजें सही हो रही हैं या नहीं। ओके, अभी बैलेंस स्कोर कार्ड, फिर वो 4 गोल्स के पास आप जाके एक लिख लीजिए कि आप ये सारे 4 गोल्स को सही से अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं। इसके लिए आपके पास चेक लिस्ट होना चाहिए, चेक लिस्ट होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे पास भी डिफॉल्टर्स नहीं होंगे, तो आपके पास क्या चेक लिस्ट है देखने के लिए किसके पास कितने डिफॉल्टर्स हैं। ठीक है, अब टीचर्स की तरफ आते हैं। आपके पास 20 टीचर्स है, 25 टीचर्स है, ठीक है, जो भी है, क्या सभी टीचर्स एक ही लेवल के हैं? क्वालिफिकेशंस एक ही है, उनका विल उतना ही है, मतलब पैशनेट टीचर्स है, या फिर वो बहुत स्किलफुल टीचर्स है? तो आपके सामने जो स्क्रीन पे है ना, अभी आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और अभी आप एक ब्लैंक पेपर पे फिर से ये 4 क्वाड्रेंट्स डालिए, फिर से एक 4 क्वाड्रेंट्स आप मेंशन कीजिए। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। यू ऑब्जर्व योर टीचर्स, यू ऑब्जर्व, स्टार्ट observing your teachers. Hopefully आपने शुरू कर दिया है observation. You can take their demos, or you about their punctuality, regularity, involvement in explaining, or you can say events, or you can say they go out of the way to do something. They are very will skillful, के साथ साथ will भी है उनका। तो आप लोग 2 अल्फाज लिख लीजिए, skill, will. स्किल विल, स्किल इज द कॉम्पिटेंस एज अ टीचर, मतलब टीचर को ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आते हैं, लाइक वो उसको उनको मालूम है कि हर बच्चों को कैसा डील करना, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अच्छे से आती है, स्किलफुल टीचर। विल क्या है? करने की चाहत, ठीक है, मतलब पैशन, मतलब वो करना उसको पसंद है। बीइंग अ टीचर शी लाइक्स, शी इज विलिंग टू बी अ पैशनेट टीचर। समझ में आया? तो अब आप एक ऐसा चश्मा पहनिए, आपके 20 और 20-25 टीचर्स को ये 4 कैटेगरीज में आप देखिए। ओके, अभी से अब जो फर्स्ट वाला मोटिवेट है ना, उसके ऊपर आप लिखिए लो स्किल हाई विल। उन टीचर्स को मोटिवेट करिए, यू हैव टू मोटिवेट और इंस्पायर दोज टीचर्स whose skill set is low and they are high on will. आप लोग लिख ले सकते, high will, low skill. You have to inspire them. How will you inspire? They are, उनके पास skills नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, तो आप उनको टूल्स देना, ट्रेनिंग देना, गाइडेंस देना। एम आई मेकिंग सेंस? जिसके पास नहीं मालूम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अनट्रेन्ड टीचर्स भी आ जाते आपके पास, अनट्रेन टीचर्स आ जाते, इंटरमीडिएट के टीचर्स रहते, ग्रेजुएट इनकम्प्लीट रहता, परस्यूइंग रहते, मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई उनको प्रॉपरली, तो स्किलफुल उतने नहीं है, लेकिन करने की चाहत बहुत है। तो ऐसे टीचर्स को यू विल मोटिवेट, यू विल गिव देम टूल्स, ट्रेनिंग एंड गाइड देम। ओके, व्हाट इंस्पायर्स देम, उनको क्या मोटिवेट करता, उस लिहाज से उनको समझ के मोटिवेट करेंगे, और फिर विजन के तरफ काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट आप देख रहे हैं डेलीगेट। डेलीगेट किसको डेलीगेट करेंगे भाई? एनी गेसेस? आप जिम्मेदारी किसको देंगे? जिसको लो स्किल हो, लो विल हो, हाई स्किल लो विल हो, या हाई स्किल हाई विल हो? जल्दी बोलिए, आपका समय शुरू होता है अब। डेलीगेट किसको देंगे, जिम्मेदारी किसको देंगे? क्विकली लेट मी सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। टिक टिक, 1 2, whom will you delegate? Very good, सलाउद्दीन सर को 5 स्टार्स दिया जाए। वेरी गुड, दोनों भी हाई है, हाई स्किल हाई विल, मतलब ये लोग जो है ऑलरेडी स्किलफुल भी है और उनको करने की चाहत भी है, तो आप उनको जो है क्या करोगे? डेलीगेट, जिम्मेदार बनाओगे, इंचार्जेस बनाओगे। ठीक है, एकेडमिक इंचार्ज, जैसे मेंटर में आपने देखा हाई स्किल है हाई विल है, आपने मेंटर बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से मेंटेनेंस के एक कोई इंचार्ज हो गए। ओके, फी कलेक्शन के टाइम कोई है, काउंसलिंग करने के लिए कोई इंचार्ज हो गए, तो आपने उनको डेलीगेट किया, रिस्पॉन्सिबल बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी।
ठीक है, तो आप उनको अप्रिशिएट करोगे, रिवॉर्ड करोगे और बार बार बोलोगे कि हम देख रहे हैं कि आपको सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स में हम आपको देख रहे हैं, हम आपको जो है आगे चल के आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको और बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, हम आप पे यकीन करते हैं। ओके, और उनको कभी कोई बड़ा डिसीजन लेना है स्कूल में तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इससे और वो लोग विजनरी, लाइक उन लोगों को और खुशी होती है, अरे सर ने मुझे कंसिडर किया, इतना मुझे वैल्यू करते हैं। ठीक है, और आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकते हैं और जब भी अभी जैसे मैंने बताया सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आप उनको दे सकते। ठीक है, ओके, अब डायरेक्ट किसको करेंगे, थर्ड वाला कॉलम जो नीचे है, डायरेक्ट किसे करेंगे, एनी गेसेस? जिसको रास्ता नहीं पता उनको डायरेक्ट करेंगे, है ना? तो रास्ता किसे नहीं पता, लो स्किल लो विल, वेरी गुड, लो स्किल लो विल, दो भी सलाहियतें भी कम है, करने की चाहत भी कम है। तो अब यहाँ पे हमारा काम बढ़ जाता कि उनको जो है हमारे पास जैसे जेम्स ज्वेल्स क्राउन्स की कैटेगरी रहती क्लासेस में, कहीं ना कहीं जेम्स के कैटेगरी में है, हम वैसे किसी को टैग नहीं कर रहे, लेकिन हमको समझने के लिए कि उनके साथ हमारा अप्रोच कैसा हो, हाउ डू वी डील विद देम, ओके, देन यू विल डायरेक्ट देम, ओके, आइडेंटिफाई उनको रुकावटें कहाँ से है, ओके, क्यों उनके पास सही से मतलब क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे बोलना है उनको, यू हैव टू टेल देम योर एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करना है, ओके, यू हैव टू ट्रेन देम, गाइड करते रहना एट एवरी स्टेप और मॉनिटर भी करते रहना, क्योंकि एक रिक्वायर्ड लेवल पे आने तक उनको उनके पीछे बहुत अपनी मेहनत रख, ठीक है, और किसी को भी जबरन जबरन हम जो है आप अपने पॉजिटिव कल्चर की बात हुई थी लास्ट टाइम, अपने स्कूल में एक ऐसा कल्चर बनाओ कि टीचर्स फील वैल्यूड, टीचर्स फील रेस्पेक्टेड, लीडर शुड नो द इंडिविजुअल स्किल सेट ऑफ एवरी टीचर। हम टीचर्स को बोलते हैं बच्चों के बारे में आपको, हर एक लर्नर के बारे में आपको मालूम होना, एज प्रिंसिपल्स एज टीचर, एज प्रिंसिपल्स एज डायरेक्टर्स, आर वी अवेयर ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज ऑफ आवर ओन टीचर्स, ये टीचर बहुत स्किलफुल है आर्ट एंड क्राफ्ट में, ये टीचर जो है बहुत अच्छे से समझाते, कॉन्सेप्ट ऐसा समझाते दिमाग में बैठ जाता, या फिर ये टीचर जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स बहुत सिस्टमैटिक कराते, ये टीचर जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत अच्छा करते। डू यू हैव सच कैटेगराइजेशन फॉर योर टीचर्स? इफ नॉट, make a decision today that you will work on this, decide about it, first you start observing and make your mind like there can be different teachers with different abilities, channelize them, utilize them so that they will add to your vision in one way or other. Am I making sense? जी, अब लास्ट कैटेगरी क्या है, एडवाइस, एम आई मेकिंग सेंस, बात समझ में आई? आप कुछ फैसले करेंगे अब आज जाने के बाद, या संडे के दिन बैठ के स्किल बिल मैट्रिक्स बना लेंगे इंशाल्लाह अपने टीम के साथ, जिसको आप डेलीगेट कर रहे हैं ना उनके साथ बैठ के बना लीजिए कि हर हर एक का क्या है, मतलब कौन से टीचर्स को मुझे डायरेक्ट करना है, किसको मोटिवेट करना है, यस, किसको इंस्पायर कर, किसको जो है एडवाइस देना है, किसको डायरेक्ट करना है। कमिंग टू एडवाइस, आप किसको एडवाइस देंगे, जो स्किलफुल है, ऐसे बहुत टीचर्स रहते हैं यहाँ पे, और स्पेशल वर्क की जरूरत है कि उनके पास हुनर है, स्किल है, जबरदस्त है, लेकिन उनको करने की चाहत नहीं है। अक्सर ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनके इंटरनल ट्रैप्स आ जाते कि मैं इतने एक्सपीरियंस से हूँ तो भी दूसरों को मौका दे रहे, मेरे को आया तो भी क्या हुआ, ये ऐसे अनवांटेड चीजें, इंटरफियरेंसेस के शिकार होके वो लोग अच्छा काम करना कम कर दे के उल्टा बाज वक्त ऐसा भी होता दूसरों को करने से भी रोकते, ये होता प्रैक्टिकली, ये हिब्बत नहीं है, एंड ऑब्जर्वेशन है, मगर आपको एज ए लीडर ये आइडेंटिफाई किए आप, तो आप क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, आप उन लोगों को बुला के बात करेंगे, आप बोलेंगे कि आप माशाल्लाह से इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, अब तक तो आप अपने स्कूल में कोई स्लो लर्नर नहीं रहना था, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके स्किल को आप प्लीज वो करिए इंशाल्लाह, लाइक यू विल बी गिविंग यू, ऐसा कुछ अच्छे से मोटिवेट करके उनको रिकॉग्नाइज करा के, उनको रिकॉग्निशन देके, फिर उनको भी थोड़ा सा कभी डिसीजन मेकिंग में उसमें इन्वॉल्व करके, ओके, और बोलना, फिर उनको भी बीच बीच में मॉनिटर भी करना, गाइड भी करना, ये बहुत बारीक, व्हाट यू कैन से, दिस पर्टिकुलर कैटेगरी से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता स्कूल को, अगर आप सही टाइम पे इसको नहीं केटर करें, लाइक दे माइट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स हु आर डूइंग गुड वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा
उनको थोड़ा सा बुला के बात करना, जिम्मेदारी देना, या फिर उनसे सेशंस आप मतलब यूटिलाइज, उनको विल कहीं भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल विजन को आप बार बार उनको बोलना पड़ेगा। देखो अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी दी, हमारा विजन ये है, कितना बड़ा काम है। सो दीज पीपल रिक्वायर मोर such guidance inshallah, right? So I expect you are going to prepare a skill will matrix and you are going to prepare checklists for individual balance score card में जो goals डाले हैं आपने उसके checklist बना लेंगे आपके स्कूल के हिसाब से। फाइनेंशियल गोल्स आपने सेट किए तो उसको क्रॉस चेक करने क्या करेंगे, नंबर्स में हो तो बेहतर है। डिफॉल्टर्स इतने कम होने चाहिए आपका गोल था, तो वो कम होने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव फॉलो अप हो रहा है या नहीं। सिमिलरली मेंटेनेंस का, सिमिलरली एकेडमिक्स का, एवरीथिंग एवरीथिंग में आप वो डालेंगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। चलिए अभी स्टार्टिंग 2 सेगमेंट्स अपने कवर हुए हैं। आप लोग 3 ऐसे पॉइंट्स लिखिए जो आप लोग एक्शन लोगे अभी वापस जाने के बाद। इससे पहले मैं फिर हमने हमारे जो ट्रैप्स है वो मैं डिस्कस करूं, आप ये बोलेंगे इंशाल्लाह। कौन से 3 काम आप टेंजिबल काम, जो नजर आने वाले काम, जो ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा लीडर बनूंगा, नहीं, आप बोलेंगे कि स्पेसिफिकली मैं टाइम से पहले जाऊंगा, मैं असेंबलीज मॉनिटर करूंगा, मैं इवन वॉशरूम एरियाज को मॉनिटर करूंगा, ये हफ्ते में किसी दिन सरप्राइज विजिट, ठीक है, मैं लेडजर बुक्स मंगा के भी चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद तो मेरा ऑब्जर्वेशन टीचर्स का चल ही रहा है, पेरेंट्स के साथ बैठ के मैं भी एक कपल ऑफ केसेस बात करूंगा, प्रिंसिपल के साथ मेरा ये स्केड्यूल है। उसके बाद और क्या देखोगे आप, किसी क्लास में आप चले जाओ, ये आपको स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रिव्यू आपको मिल जाएगा। आप अगर एक क्लास लेते हैं पर्टिकुलरली, तो सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस में आप जाओ और बच्चों से बात करो, उनको इंस्पायर करो, स्कूल क्यों पसंद है पूछो, क्या चेंज होना है पूछो, तो वो लोग ऐसे आंसर्स बोलेंगे इंशाल्लाह कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्कूल कितना काम कर रहा है। लाइव रिपोर्ट आ जाएगा आपको ऑडियंस में से, ठीक है। तो वो ऐसे चीजें कुछ करिए जो आपके डिसीजन मेकिंग में ऐड करें इंशाल्लाह। फिर आपने नोट किया, पैटर्न देखा, पैटर्न देखने के बाद फिर आपने डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा। म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद, आप शुरा के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये इनिशिएटिव होना चाहिए, मैं अब से ऐसा करूंगा, ये हमारे इंचार्जेस है, इंचार्जेस की मीटिंग हफ्ते में 1 बार होनी चाहिए, ये आपने डिसीजन ली, ठीक है। प्रिंसिपल से मीटिंग, रोज ऑब्जर्वेशन वर्क रिपोर्ट में मंगाऊंगा, ठीक है। बच्चों से ऐसे, इस तरीके से आप अपने निजाम को एक अच्छे से रोज भी मतलब आप क्रॉस चेक करे जैसा एक सिस्टम पे लेकर आओगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। डिड वी गेट सम रेस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स? वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, विजिटिंग द स्कूल, स्किल विल मैट्रिक्स, डेली वर्क रिपोर्ट, नैला मैम ये बताए माशाल्लाह, यस। हर स्टेक होल्डर के लिए कुछ ना कुछ रिव्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश करिए। दैट्स गुड माशाल्लाह। अ ब्यूटीफुल कोट हैज कम अप ऑन स्क्रीन, वो भी देखिए, स्टार मार्क डाल के लिख लीजिए पॉइंट्स को। यू गॉट मेनी थिंग्स टू शेयर माशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक, तो कुछ भी ना करना इज मोर ऑफ अ रिस्क, ऐसा है ना? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज देयर ऑन स्क्रीन क्विकली विदाउट डिले, बिकॉज देर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग अप और आप सब रिलेट कर पाएंगे ट्रैप से। ट्रैप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, छोटा सा सेगमेंट है, मैं बताती हूँ आपको इंशाल्लाह। नबला मैम, is there a clarity? I am on bilingual mode, so did you understand? Nabla ma'am, did you understand the art of decision making? Not completely, okay. Any concern? I'll take up. Yeah, that's why I asked you. So I just spoke about, yeah, I just spoke about having proper accountable structures. The goals you made na last time, balance scorecard, have some checklists to check whether the goals are established or not, accomplished or not. Okay, right from visiting the school as a school leader before the students come, it will open up many things that the entire system comes in front of you.
and looking at that you can see what is not going right. Okay, what is deviating from what should have been done. In that cases you're going to establish proper accountable structures and ensure that everything goes on seamlessly, independently. Okay, that's what was discussed. In case of deviation, if something is not working out also, you should get to know about the root cause. What is the problem behind? Okay, and then that will help you to resolve a problem and decide accordingly. Always you need to appreciate the performers and counsel the deviants. Means appreciate, जो कर रहे हैं उनको appreciate करना, जो नहीं कर रहे हैं उनको counsel करना. Is that fine, everyone? Then we discussed about skill will matrix. Yeah. Parents के feedback के लिए you can have a questionnaire, simple questionnaire, a Google form sort of thing, also a survey form in which you are writing up some questions. इफ्तिखार सर एक 10 question simple वाले बना के आप survey दे सकते हैं. Okay, and then you will get a data for that. जो like their involvement, their regular timings, how much of time do they involve in students learning. Okay, and what is their routine, who is taking care of the students, and something of that sort. जो parenting से related questions है, you can like post 10 to 12 questions on a Google form and send them, or in your parent orientation sessions उन लोगों को hard copy दे के भी करा सकते हैं इंशाल्लाह. Okay, now very easy, very interesting topic. Just for 2-3 minutes I will take. कुछ रुकावटें, there are some barriers. We can change the slide. Sure, ma'am. Zahida ma'am, you share the request in the on the core group. Inshallah we will share. Okay, so there are some barriers. कुछ रुकावटें हैं internal external, like something that stops you from taking a decision. Okay, something that stops you from taking a decision. It is like fear है, ego है, लोग क्या समझेंगे, what others will think if I decide, what if someone is hurt. Okay, and what me taking up this decision, I am something like I can never do. Wherever I pops up, that is ego. Okay, and being indecisive, as I told you, many of them will not be quick decision makers or good decision makers. So indecisiveness, like you feel both the things are right, so what to do. So that's a situation which is a barrier. Okay, and distrust, not having trust on someone. Antagonism means many negative things that are influencing your mind to take up the right decision. Many things, many negative things, negative opinions or something that is stopping you from doing something. Okay, and lack of data. External factors में क्या है? If you don't have proper evidences or proof or data, जैसे इफ्तिखार sir asked a good question like how to take a survey, how to collect data, so that if you take Google Forms, you will get in numbers. Out of 100 participants, 100 parents, only 5 of them have filled the Google form. You have a number that shows how many of them are not interested or not involved or not equipped or not adept enough in taking up something like this. You got it, right? So this is some external factor that is barrier. Then inaccurate analysis. Inaccurate analysis means सही से आप analyze नहीं कर रहे. ये सारे, anyways it is there on screen. I will not go in detail. Let's go with the traps. Traps of decision making. Simple. Take a screenshot of that. Okay. Traps का मतलब क्या है? What is a trap? जैसे कोई एनिमल को भी पकड़ना हो तो एक ट्रैप, एक जाल बिछा के रखते हैं ना, that is a trap. Okay, something that holds you, right? So now there are some traps that will not allow you to think properly before you take up a decision. Yes, and what are those traps? The first one is actually anchoring trap. You can write anchoring trap. What is anchoring trap? Do you know what is an anchor? Anchor किसे कहते हैं? एंकर किसे कहते हैं? जो आदमी परिचालना करता है. जी,
जो प्रोग्राम्स में स्पीच वगैरह देते हैं वो एंकर अलग है, ओके वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अलग है। और कभी आपने समुंदर में उसमें जो जहाज को वो करने के लिए नीचे जो जमीन से जुड़ा हुआ एक रहता है ना एंकर, यू कैन सी द इमोजी इफ एट ऑल यू कैन। सो जो फिक्स करता है ग्राउंड में, जमीन पे फिक्स करता है, उसे एंकर कहते हैं। जो चीज जमीन को, अब जहाजों के पास आप देखे होंगे वो रस्सी बांध के उसको फेंकते हैं तो नीचे वो जाके बिल्कुल फिक्स तरीके से जकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड एन एंकर। तो हमारे डिसीजन मेकिंग में भी अपना कोई ख्याल, हमारा जो थॉट है, हम उसको वैसे ही जकड़ के रखते हैं। हम पहले से ही किसी के बात को मान लेके उसी के ऊपर डिसाइड करना समझते, दैट इज वन एंकरिंग ट्रैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि जिंदगी के इतने सारे तजुर्बों में कितने बार मैं इन्फ्लुएंस हो गया किसी के बात पे, जस्ट बिकॉज वो पहले आके सुना दिए बात को, तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते कि वो ही सही है। दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप। तो ऐसे उसमें ही हमको बार बार अल्लाह से दुआ करना है गाइडेंस के लिए। वी शुड एक्चुअली सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह and see the way. That is where we fix ourselves like this is only right, without analyzing both the ways, both the causes, both the in both the directions. You are not looking at it and you are taking up opinion that is coming up first. Is that clear everyone? That is the anchoring trap. अल्लाह हमको बचाए। तो इससे क्या है, हम will not fix ourselves to that thing and we'll keep our mind open and listen to everyone and try to empathize with the story, every side of the story, and then make up a mind to decide after proper analysis without jumping on just because it is the first thing that we received. Is that okay? Even in our life, अपने जिंदगी में भी ये ट्रैप आ जाता। दो भाई लड़के आ गए, फर्स्ट वाले आके सुना दिए तो हमको दिखता कि वही बात सही है क्योंकि उसने पहले आके रिपोर्ट की। ठीक है, तो ये वाली बात है और इससे हमको बचना है। सेकंड वाला है स्टेटस क्यो। क्योंकि स्टेटस क्यो मतलब जो होते आ रहा है हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है, इट इज हैपनिंग अराउंड, दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड देन यू डू द थिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड थिंग टू डू। ये तो बहुत बुरा ट्रैप है, हमेशा से, इतने सालों से ऐसा ही होता, दिस इज हाउ इट हैपेंस, that is what is called as the status quo. Okay, you have to abstain from this. Again this will be like data driven analysis. Data driven analysis आपको करना है, ठीक है, data driven analysis आपको करना है। Okay, and this is how it happens, सोच के कोई चीज फैसला करना, that's not good. And the last one today what I'm going to talk, and the most important one is the sunk cost fallacy. It is called as the sunk cost trap. इसका मतलब क्या है? The best example is, I will say like, आप जो है कोई दुकान पे जा रहे हो, आपको दूध लेने जाना है, आपने देख लिया दूर से कि दुकान बंद है, आपको दूध लेने जाना है, आपने you have seen that the shop is closed, but you started your journey with an expectation, okay, that it might be open. Then you have come half of the way, आधा रास्ता आप आ गए, फिर आप देख रहे कि दुकान बंद है, ठीक है, फिर भी क्योंकि आधा रास्ता आ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं बोल के फिर आप आगे जा रहे, मीन्स यू नो दैट देयर इज नथिंग एट द एंड, बट स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड टू डू समथिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, इवन इन रिलेशनशिप्स एंड इवन इन योर स्कूल इट इज गुड, लाइक यू वी कंटिन्यू टू डू समथिंग बिकॉज अब तो हो गया ना, आधा टाइम गुजर गया, चलो, एंड यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग दैट साइड, दुकान बंद है आपको मालूम है, फिर भी आधा रास्ता तो आ गया ना, चलो देख लेते हैं, मतलब देयर इज नो सेंस इन दैट। ओके, सो व्हेन यू डिसाइड, आपने डिसाइड किया है किसी को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, कोई पैटर्न आपने देखा है रिपीट हो रहा है, देन ऑल्सो यू आर लाइक फिर भी शायद सही हो जाता, when you know that कुछ सही नहीं होता and you are continuing with that, so that is a trap. Let's abstain from it. You can do further research by yourself by looking into decision making traps. Okay, and then आप लोग खुद leaders हो माशाल्लाह, you can do your own research and evolve in this particular topic and seek guidance from Allah subhanahu wa ta'ala at every step. The actionable points you have to take up is to have proper checklists and accountable structures, skill will matrix inshallah, and then reflection on your decisions, proper taking up a proper decision council
having a group of your well-wishers from your board of directors and leaders or passionate teachers, and then involving them in decision making before taking up a decision, talking about it, and then coming up to the point, inshallah. So this is all about decision making that helps you translate the vision into reality. Okay, is that fine? Jazakallah khair. I exceeded by 7 minutes because we started after 7 minutes. Okay, so that's all from my side. Any announcements, or Rafin and Tehreem, you can go ahead, and you people can give a quick feedback in the chat box. What made sense, and was it helpful? Was this session helpful to you? इमरान नेट गया Jazakallah, Arshid. Dear school leaders, if you cannot see your name or your school name in the list, please let us know. Which school do you belong to? Rafin, is the screen visible? Yeah, it is. Jazakallah khair, Aisha ma'am, for a wonderful session. The only thing that I would like to add is, and treat it as a reminder, that no matter what decision we are going to make, always seek counsel from Allah, do istikhara, and it's only then take your decision. No matter how small that matter is, always talk to Allah. Even if you don't have time, like it's just you want to make that decision in a moment, just tell Allah, oh Allah, if it's good for me, just make it happen, or else take me away from it. So a quick talk with Allah will always help you, and whatever decision you will take, it will always be beneficial for you and your school, inshallah. Jazakallah khair. Jazakallah, Rafin. That was a lovely reminder. Jazakallah, everyone, for joining us. And hopefully you're coming up with all these. We had to share that, right, Rafin? Google form? Yeah, I'll post it in the Core group, inshallah. We'll post it post it in in the the Okay. chat box. Okay, we have an assessment, dear school leaders. We have an assessment with all the 6 topics covered till now. So उसमें हम लोगों ने we have kept some actionable things for you, as like vision statement, mission statement, goals and skill will matrix, all such things. So you work on it and share with us. Okay, wherever evidence is required, if you can attach that also, it will add to this one, your score, inshallah. So wherever you can take pics and what you can say, if you Ma'am, we can can share it walk with them any through the short form. video. Yeah. Yeah. See, this is how the form will look like. You'll have to fill in your vision and mission statement, and then fill in the SMART goals. Then over here, we'll ask you to upload a file, like you can, a doc will also do, or just an image will also do, okay? For growth mindset, this will be the question. Then, ma'am, do you want to explain about positive culture? Like they'll have to upload a video clip. Like what initiatives have you implemented to create and maintain a positive school culture? You can upload a small video clip for that. Or if you want to just document it and share the document with us, that will also be fine, inshallah. Then we've asked you to, for SWOT analysis. When there's this Aisha ma'am, I would request you to please explain this in Hindi or Urdu also.
देखिए ये है ना चेक पॉइंट है, अभी हमारे 6 सेशंस हुए लीडरशिप के, तो सिर्फ हमको यहाँ पर आकर है ना सेशन सुनना नहीं है, राइट, हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ही हमारी स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट। तो जो भी आपको अभी तक के टॉपिक कवर किए गए हैं उसका हम लोगों को चेक पॉइंट चाहिए कि आपने उसमें से क्या क्या चीजें आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि हम लोग, और जो नहीं हो सका हम लोग आपको और अच्छे से सपोर्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप ये फॉर्म फिल कीजिए। सबसे पहले SLD 1 जो हमारा टॉपिक था विजन अलाइनमेंट पे, उस पे हम लोग आपसे ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, 3 क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड कि विजन स्टेटमेंट क्या है आपका, मिशन स्टेटमेंट क्या है, और जो आपके जो गोल्स है ना वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल वैसे। तो वो आप ये 4 अरीनाज में, 4 एरियाज में, फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेसेस, एकेडमिक्स और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपको आपके 3 ईच गोल्स लिखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा लॉन्ग पैराग्राफ का। फिर सेकेंड आपका SLD2 जो था ग्रोथ माइंडसेट पर था, उसमें आपको ये क्वेश्चन किया गया है कि आपकी पर्सनल केस स्टडी आप शेयर कीजिए कि वे यू डेमोन्स्ट्रेटेड अ ग्रोथ माइंडसेट, तो आपके लिए क्या चैलेंज था, आपने इसको कैसे अडेप्ट किया, हाउ डिड यू ओवरकम इट, तो वो हमारे से शेयर कीजिए। आप वीडियो भी बना के भेज सकते हो, 3 मिनट्स के लेस देन 3 मिनट्स वाला वीडियो भेजिए, और या 1 पेज में आप गूगल डॉक्स वगैरह पर लिखकर वो भी फाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपको पॉजिटिव कल्चर के बारे में बोलना रहेगा कि व्हाट इनिशिएटिव्स हैव यू इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर। तो इसका अगर आप छोटा सा आपके स्कूल का, फॉर एग्जांपल स्कूल में पास होते हुए भी बच्चे एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, टीचर्स एक दूसरे को स्माइल देकर मिल रहे हैं, पेरेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए, ऐसे छोटे छोटे क्लिप को भी आप एक साथ मर्ज करके एक अच्छा वीडियो बना के शेयर कर सकते हो। फिर है हमारा नेक्स्ट सेक्शन SLD 4 का स्वॉट एनालिसिस। इसमें आपको हर डिपार्टमेंट से मीटिंग लेना है, डिपार्टमेंटल हेड से, एकेडमिक्स, एडमिन, फाइनेंस एंड ऑपरेशन से, और आपको एक स्वॉट एनालिसिस प्रिपेयर करना है कि आपकी उस डिपार्टमेंट के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, और फिर उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख कर, टाइप करके या किसी से करवा कर आपको यहाँ अपलोड करना रहेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कि जो हमारा लीडरशिप से, इस्लामिक लीडरशिप पर जो सेशन हुआ था, अगर आप अटेंड नहीं किए होंगे तो तहरीर मैम से आप लिंक ले सकते हो रिकॉर्डिंग की, और फिर आप ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर फिल करना है, आपको टाइप करना रहेगा आंसर। और फिर लास्ट सेक्शन हमारा है जो आज के सेशन पर बेस्ड है, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर। तो इसमें आपको आपके स्टाफ का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है, और स्किल विल मैट्रिक्स जो आपको अभी सिखाए ना मैम के, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वो वैसे बना के 4 क्वाड्रेंट्स बनाकर आपको यहाँ पर शेयर करना है कि आप कैसे आपकी टीम मेंबर्स को, किसको मोटिवेट करने की जरूरत है, किसको डायरेक्ट एडवाइस डेलीगेट करवाओगे। तो आपको ऐसे थोड़ा आप टाइम दीजिए, इसको कल संडे है, आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कल ही सबमिट करें ये। वैसे यू हैव 1 वीक्स टाइम, लेकिन फिर भी जो if you treat it as a priority, it will get done. तो बेटर रहेगा कि आप कल संडे को ये सबमिट कर दीजिए इंशाल्लाह। तो व्हाट्सएप पर भी कोर ग्रुप्स में हम लोग लिंक शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और अभी चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर की गई है। That's it from my side. Jazakallah khair for listening to me patiently. Tehri ma'am, please note whatever is coming up in the chat box, and please contact them and give them whatever they need. There's, do you know what school they belong to? Yes. Yeah, all right. See, we don't share the presentation. We encourage you to take notes, but we can share the recordings, inshallah. Okay, then I think we can conclude the session, Rafin. Yeah, sure, ma'am. Jazakallah khair, everyone, for your attendance. We'll meet next week, inshallah. And please encourage your teachers to attend the free action research course, which is scheduled for tomorrow. The first class will be tomorrow in the morning at 11 o'clock. On our social media channels, you'll get the link for registration. Please encourage your teachers to register for this. And if you also want to come, please register for it. It is a 5-week course.
on Action Research. It starts from tomorrow. It will be held every Sunday in August, inshallah. Jazakallah khair, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.